I shared on this verse, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Remember? So we did this 3-part series on Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा के ऊपर 3 भाग में खास तौर पे हमने फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में बात की, लेकिन उससे पहले हमने द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, and after that we saw the ministry of the Holy Spirit, and then we moved into the fellowship of the Holy Spirit. But this morning I want us to focus on some other aspect of this verse. But before that, I would like to ask you one question. Are you ready to answer? Yes. What is the first verse in the Bible? God's. In the beginning, God created the heavens. Easy, I mean, ये तो कई लोग बता सकते हैं. Another question, which is the main question. Quickly you have to tell me, which is the last verse? Amen. Last verse. जो भी इन बातों को बाइबल में से निकालेगा उसमें से कुछ करेगा. Verse, I'm talking not word, I'm talking about the verse. Revelation 20 to 21. Jesus is coming soon. That is Revelation 20 to 20. Behold, I'm with you always. Surely I'm coming with you. That is 20. 21. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. Amen. So today we are going to look at the first part of this verse, the grace of the Lord Jesus Christ. Do you like grace? Yeah. So let's just understand the grace of the Lord Jesus Christ. And as we saw that this is the last verse of the Bible which speaks that the grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. It means we truly need the grace of Lord Jesus Christ. Do you agree? Yes. हमें सचमुच प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की जरूरत है. तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है, क्यों ना हम लोग आज उसके बारे में देखें. What is grace? अनुग्रह क्या है, कोई बता सकता है? What is grace? Unmerited favor. If you're thinking it is prayer before meals, that is little bit true, but that's not the real meaning of grace. It is unmerited favor. Anyone else? Free. कुछ तो free है. Free में तो कुछ मिल रहा है. Okay. Undeserved, you said? Favor. Undeserved favor, which is correct. Okay. You know, one of my favorite parables of Jesus Christ, which truly depicts the grace of God, is the parable of the prodigal son. I think whenever I read that parable, I think somehow it really moves my heart. वो मेरे हृदय को कुछ ना कुछ मेरे हृदय में करता है. और वो जो उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी है, वो एक सचमुच में प्रभु के अनुग्रह के बारे में हमें बताती है. तो क्यों ना हम लोग उस कहानी को देखेंगे. Can someone open in Hindi for me? But I am going to read it in English. Luke 15:11 to 24. Let's just read the story of the prodigal son from verses 11 to verses 24. It says, so if you don't know this parable, I'm going to read. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. एक आदमी था, उसके 2 पुत्र थे. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. तो जो छोटा पुत्र था, उसने अपने पिता को बोला कि मुझे मेरे जो आपकी जो जायदाद है उसका मेरा हिस्सा मुझको दे दो. So he divided his property between them. तो पिता ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी तो डिवाइड कर दी. Not long after, और कुछ ही समय बाद, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. और कुछ ही समय बाद उस जो छोटा पुत्र था, उसने अपनी सारी धन दौलत ली, वो दूसरे देश में गया. वहां उसने सारा जो धन था वो वाइल्ड चीजों में, जो ऐसी चीज जो मजे की चीजों में, सारा पैसा उसने अपना उड़ा दिया.
उसने बहुत मजे करे, लेकिन एक समय आया सारा पैसा उसका खत्म हो गया। एंड आफ्टर ही हैड स्पेंड एवरीथिंग, जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया, देयर वाज अ सीवियर फैमिन इन दैट होल कंट्री एंड ही बिगैन टू बी इन नीड। लेकिन जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया, वहां पर भी एक अकाल पड़ा और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। और अब उसने जाना कि अब उसको खाने की जरूरत है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, खाने के भी लाले पड़ गए उसको। उसके पास कुछ भी नहीं था और उसको हर एक चीज की जरूरत महसूस हुई। सो ही वेंट एंड हायर्ड हिमसेल्फ, तो उसको लगा कि हाँ, मैं कहीं तो नौकरी कर लूं। और वो गया, उसने नौकरी की और hired himself out to a citizen of that country who sent him to the fields to feed pigs। तो जो उसको काम मिला वो था सुअरों को खाना खिलाने का काम। तो ये काम उसको मिला। और he longed to fill his stomach with the pods the pigs were eating but no one gave him anything। लेकिन वहां पर भी क्योंकि उसको ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, उसको वहां पर भी भूख लग रही थी। तो जो सुअरों को जो खाना देते थे वो खाना वो वहां से लेकर के खाता था। When he came to his senses, लेकिन जब उसको समझ में आया कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, वो कर क्या रहा है यहाँ पर, he said, how many of my father's hired servants have food to spare and here I am starving to death। उसने कहा कि मेरा पिता जो इतना धनवान है, इतना धनी है, और उसके पास कितने नौकर चाकर हैं, और वहां नौकरों का खाना बच जाता है, उनके पास इतना खाना होता है कि वो उनका खाना बच जाता है, और यहाँ जो मैं है, यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। And I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you। तो उसने कहा कि मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं उनसे माफी मांगूंगा, मैं बोलूंगा कि हाँ पिता, मैंने जो किया वो गलत किया, जब मैंने अपने हिस्से का पैसा लिया। आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड अगेंस्ट यू, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है। एंड आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन, और मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मेक मी लाइक वन ऑफ ए हायर्ड सर्वेंट। सो ही गॉट अप एंड वेंट टू हिज हाउस। उसने सोचा कि मैं उनसे यूं बोलूंगा कि मुझे बेटा भी मत बोल, सिर्फ मुझे अपना नौकर ही रख ले। और ये सोच करके वो अपने पिता के पास गया। और कहानी आगे बढ़ती है। बट while he was still a long way off, लेकिन जब वो काफी दूर ही था अपने घर से, his father saw him and was filled with compassion for him। उसके पिता ने उसको दूर से ही देख लिया। शायद पिता उसके इंतजार में वहां खड़ा रहता होगा, और उसने दूर से ही देख लिया और उसको दया आई। He ran to his son। पिता अपनी जगह से भागा अपने बेटे के पास, threw his arms around him and kissed him। उसने अपने बेटे को बाहों में लिया, उसको चूमा। And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you। I am no longer worthy to be called your son। उसने कहा कि पिता, मैंने तेरे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, मैं तेरे बेटा कहलाने लायक नहीं। उसने जल्दी से ये बात बोली, लेकिन पिता ने शायद उस बात पे ध्यान नहीं दिया। उसने अपने जो नौकर थे उनको बोला, जल्दी लाओ, ब्रिंग द बेस्ट रोब एंड पुट इट ऑन हिम। क्योंकि पिता को पता था उसकी हालत कैसी है, काफी सोचो जो सुअरों को खाना खिलाता होगा उसके कपड़े कैसे होंगे, कैसा महकता होगा। तो उसने कहा कि जल्दी से सबसे अच्छे जो कपड़े हैं वो लाओ, इसके ऊपर डालो, इसके हाथ में जो रिंग है, पुट ए रिंग ऑन हिज फिंगर एंड सैंडल्स ऑन हिज फीट, उसको जूते दो। एंड ब्रिंग द फैटेंड काफ एंड किल इट। और जो सबसे जो काफी जो मोटा अगड़ा जो बछड़ा है उसको काटो, और लेट्स हैव अ फीस्ट एंड सेलिब्रेट। क्यों ना हम लोग जश्न मनाएं। फॉर दिस सन ऑफ माइन वाज डेड एंड इज अलाइव अगेन, ही वाज लॉस्ट एंड इज फाउंड। जो मेरा बेटा जो मर गया था और वो वापस जिंदा हो गया है, जो हो गया था उसको मैंने पा लिया है। सो दे बिगैन टू सेलिब्रेट, और वो जश्न मनाने लगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ग्रेस। ये एक अनुग्रह की कहानी है। व्हाट इज ग्रेस? ग्रेस क्या है? जैसे आप लोगों ने कहा, नंबर वन, ग्रेस इज गेटिंग व्हाट वी डोंट डिजर्व। हमें वो मिलना जिसके हम लायक नहीं थे। तो ये बेटे को वो मिला, वो उसके लायक नहीं था। पिता को पूरा हत्था बोल सकता था कि मैं तुझे नहीं जानता, तू अपना हिस्सा लेके गया है, तू मेरे खिलाफ गया है। पिता वो सब बोल सकता था, वो ऐसा कह सकता था, वो कहने में वो बिल्कुल सही था। लेकिन उसको वो मिला जिसके वो लायक नहीं था। व्हाट इज ग्रेस? ग्रेस इज गॉड्स काइंडनेस फ्रीली गिवन। और जब हम अनुग्रह की बात करते हैं और जब
परमेश्वर को उसके बीच में लाते हैं, और जो परमेश्वर जो फ्रीली हमको देता है वो ग्रेस है। बहुत सारी ऐसी चीजें इस दुनिया में, बहुत सारे लोग शायद प्रभु की अच्छाई के लायक नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु अपना अनुग्रह लोगों पे दिखाता है। सूरज की रोशनी सबके लिए है, चाहे कोई मर्डरर हो, चाहे कोई रेपिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सूरज की रोशनी सबके लिए है। जब बारिश होती है वो सबके ऊपर होती है, जब जब जो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं वो सबके लिए। तो ये प्रभु की जो काइंडनेस है, जो ग्रेस है, वो प्रभु सबको दिखाता है। लेकिन हम ये भी समझते हैं जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं कि जो प्रभु का जो अनुग्रह है, 2 कुरिन्थियों 8-9 में कहता है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि यद्यपि वह धनी था, फिर भी तुम्हारे लिए वह निर्धन बन गया ताकि तुम अपनी निर्धनता के द्वारा धनी हो जाओ। लेकिन प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना अनुग्रह दिखाया। थर्ड when we understand grace, how do we understand grace? It's God's riches at Christ's expense। मतलब कि मसीह के बलिदान की वजह से जो परमेश्वर का धन हमें मिलता है वो हमारे लिए अनुग्रह है, वो ग्रेस है। हमें अगर ग्रेस को समझना है तो हमें यीशु मसीह के कार्य को समझना पड़ेगा। हम इस लायक ही नहीं थे कि हमें हमारे लिए प्रभु वो ग्रेस दिखाए, लेकिन टाइटस तीतुस 2:11 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार का मार्ग दिखाता है। फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड इज अपीयर्ड, दैट इज जीसस क्राइस्ट, दैट ऑफर्स सैल्वेशन to all people। John 1:17 says, यूहन्ना 1:17 कहता है, law came through Moses but the grace and truth came through Jesus Christ। व्यवस्था मूसा से मिलती है लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह से आती है। So what is the grace of the Lord Jesus Christ? There's a verse in Ephesians 2, Ephesians 2 में लिखा है, for by grace you have been saved through faith, and this is not your doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one can boast। तो जो ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है वो यीशु मसीह का कार्य है। हम खुद से नहीं कह सकते कि हाँ हमने ऐसा किया है तो हमने प्रभु के अनुग्रह को पाया है। प्रभु का अनुग्रह, the grace, we can only understand because of the work of Jesus Christ। For by grace we have been saved through faith। So when man sinned, तो हमें इस ग्रेस की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें पता है कि जब आदमी ने पाप किया, जब आदम ने पाप किया, और हम देखते हैं उस in the garden of Eden, when we know that when man sinned there was guilt and shame, and man, Adam and Eve, they were hiding, they hid themselves when God was coming in the cool of the day। They used to have fellowship with God। उनकी संगति प्रभु के साथ पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन जब पाप आ जाता है तो आदम और हव्वा अपने आप को, जब उनको शर्म महसूस होती है और वो अपने आप को प्रभु से अलग करते हैं, और जो ग्रेस है उसका एक छोटा सा हम कह सकते हैं नमूना देखा हमने, छोटा सा एग्जाम्पल देखा। गॉड एक्चुअली सैक्रिफाइस्ड एन एनिमल and he made clothes, he made covering for Adam and Eve, and God covered their shame, and this was the symbolic of what God was planning to do for the whole mankind। God was going to sacrifice his only son so that through that the whole mankind, the shame of the whole mankind will be taken care। God out of his love sent his son। प्रभु ने अपने प्यार की वजह से अपने इकलौते पुत्र को देखा, so that mankind be saved and the relationship with be restored, और ताकि मनुष्य जाति बच जाए। और क्योंकि पाप आ गया था और पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल कहता है, और लेकिन हमने देखा कि प्रभु के यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से हमारे प्रभु हमें बचाता है।
this verse says that we are saved by grace through faith. It is not our doing, it is the gift of God. जो ग्रेस है वो प्रभु का गिफ्ट है, हम उसको कभी अर्न नहीं कर सकते हैं, हम उसके लायक ही नहीं थे, हम उसको क्वालिफाई ही नहीं कर सकते थे, लेकिन ये क्योंकि ये प्रभु का गिफ्ट है, ये हमारे कार्य की वजह से नहीं है। आवर गुड वर्क, जो भी हम कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ आवर फेथ इन गॉड एंड इज आवर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स हिज ग्रेस। हमारे अच्छे कार्य हमारी प्रतिक्रिया है कि हम बताते हैं कि हाँ प्रभु तूने हम पे रहम किया है, इसलिए प्रभु हमारे जो भी कार्य हैं अब तेरी नजरों में सही है। यू नो, ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टॉक अबाउट वर्क्स। जितने भी जो धर्म है दुनिया के, वो कार्य पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, इससे तुम्हारे पाप होंगे। लेकिन सिर्फ ओनली क्रिश्चियनिटी टॉक्स अबाउट व्हाट जीसस हैज डन फॉर अस, नॉट व्हाट वी हैव टू डू। What Jesus has done for us, that Jesus died, and by that grace we have been saved through faith. ये जो ग्रेस और फेथ का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। इट्स अ लाइफ गिविंग कॉम्बिनेशन। द ग्रेस वी हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। यू नो, आई जस्ट रेड द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन। मैंने पुत्र की कहानी अभी पढ़ी। वी कैन से द फेथ ऑफ द सन, द फेथ इज सन गोइंग टुवर्ड्स द फादर, the grace is father coming towards the son. विश्वास हुआ है कि उसने विश्वास रखा कि हाँ मेरा पिता मुझे अपना लेगा, और उस विश्वास से वो अपने पिता के पास गया। लेकिन अनुग्रह क्या है? पिता ने अपना अनुग्रह दिखाया और वो उस अनुग्रह में अपने पुत्र की तरफ बढ़ा। दोनों ही जरूरी थे। अगर वो पुत्र अपनी जगह से नहीं जाता, वो यही सोचते रहता हाँ पिता शायद मुझे माफ नहीं करेगा, मेरी यही जगह है, मैं यही रहूंगा, जो भी है मैं ऐसी हालत में रहूंगा। अगर पुत्र वहां से उठ के अपने पिता के पास नहीं जाता तो शायद वो रिश्ता वापस नहीं होता। और अगर पिता अपने पुत्र को नहीं अपनाता तो भी वो रिश्ता वापस कायम नहीं होता। तो वी नीड बोथ फेथ एंड ग्रेस। सो फेथ इज son going to meet his father, grace is father running towards his son. We all need the grace. God and in that story, it's such a wonderful thing that the father has not only accepted his son, जो पिता ने अपने पुत्र को सिर्फ अपनाया ही नहीं, Bible says that he celebrated his son's homecoming. पिता ने जश्न मनाया कि उसका जो खोया हुआ पुत्र था वो वापस आया है। You know, God celebrates, the heaven celebrates when a lost person comes back to the Father. जो एक खोया हुआ व्यक्ति जब पिता के पास आता है तो स्वर्ग जश्न मनाता है। There are many people who are lost in this world. And maybe if you're sitting this morning, you're thinking, I need to come back to God. अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे पिता के पास आना है, पता नहीं पिता मुझे अपनाएगा कि नहीं, लेकिन the God has already shown his grace through his son Jesus Christ. पिता ने अपना अनुग्रह यीशु मसीह में भेजा है हमारे लिए। We have to come to God through Jesus Christ. हमें पिता के पास आना है यीशु मसीह के द्वारा। We just need to pray in our heart that Lord, I want to come back to you. Lord, I want you to once again work in my life. पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से मेरे जीवन में कार्य करें। Let's just close our eyes. फिर हम अपने इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। And if you are a person, you are thinking that maybe I have gone far away from God. अगर आप ये सोच रहे हैं, आप ये जानते हैं कि आप पिता से काफी दूर जा चुके हैं, शायद कुछ ऐसी चीजों में हैं जहां पर आपको नहीं होना है। पिता क्योंकि अनुग्रहकारी है, पिता ने हमें छूट दी है चुनाव की। We have chosen, हमने वो चुना है कि हम पिता से दूर चले गए। But this morning God is reminding us that His grace is available. उसका अनुग्रह हमारे लिए है। To just say in our heart, क्यों ना अपने हृदय में बोले कि Lord, I want to come back to you. God is ever willing
to accept you because He is your Father. Lord, I pray that anyone who is lost here, Lord God, Lord, any heart, Lord, any life which is going away from you, Lord, I pray in the name of Jesus that homecoming will happen this morning, Lord. Person will come back to you, Lord, because there is where we belong. हमारी जगह वही है प्रभु, हमारी जगह तेरे पास है प्रभु। प्रभु हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, हम तेरे राज्य के लोग हैं प्रभु। प्रभु हम हमारी जगह तूने वही ठहराई है प्रभु। हमारी जगह वो नहीं है जहाँ हमें उस दुनिया में परेशानी में रहना है प्रभु, जहाँ हम जानते हैं कि दुनिया का जो दुख दर्द हमें देखना है या उन सब चीजों में हमें जाना है प्रभु, जिसका कोई जिससे हमें कोई फायदा नहीं है प्रभु। लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि तेरे पास सच्चा जीवन है प्रभु। तू जीवन की रोटी है प्रभु। Lord, I pray that anyone who is going far from you will come back to you this morning, Lord. Thank you, Father. Maybe you're saying this morning that you don't know what I have done. अगर आप ये ऐसा बोल रहे हैं कि तुमको नहीं पता मैंने क्या किया है, I don't know whether God will accept me. आप अगर ये सोच रहे मुझे आपको पता नहीं है कि मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं कि प्रभु मुझे अपनाएगा कि नहीं. So for that I would like to share one more story. मैं एक और कहानी आपको बताऊंगा. The story of Paul. पौलुस की कहानी. अगर हम पौलुस की कहानी को जानते हैं तो हम अनुग्रह को समझते हैं. पौलुस अनुग्रह को समझता था क्योंकि उसने प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में देखा था. Grace is available for everyone. उसका जो अनुग्रह है वो हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है. और वो जो बात है पॉल के कन्वर्जन से समझ सकते हैं. पौलुस का जो परिवर्तन होता है, पौलुस का जो हृदय परिवर्तन होता है, उसके जीवन से हम समझ सकते हैं कि उसका जो अनुग्रह है वो सबके लिए है. चाहे वो कितना कठोर, कितना कह सकते हैं कि ईवल पर्सन क्यों ना हो, प्रभु का अनुग्रह उसके लिए है. अगर आपको पौलुस की कहानी के बारे में जानना है तो पौलुस की एंट्री हम देखते हैं, जो जिसका नाम सॉल था, सॉल ऑफ टार्सस. वो प्रेरितों के काम 7 में अगर हम देखें, अगर आप कोई पौलुस के ऊपर मूवी बनाएगा तो सबसे पहला सीन अगर आप देखेंगे कि पौलुस के पैरों पे लोग आकर के अपने कोट रख रहे हैं. He's like a big boss of a big gang and he was doing things against Christians. और वो जो मसीह लोग थे उनके खिलाफ कार्य कर रहा था. He was in fact approving the killing of the Christians in those times. Acts 7:58 says the witness laid their coats at the feet of a young man named Saul. और वो बहुत नौजवान था, वो उसका नाम सॉल था. और उसके कदमों पर, शाऊल के कदमों पर लोग कपड़े रख रहे थे और वो तैयार हो रहे थे और वो जा रहे थे मसीहों को मारने के लिए. और सॉल उनको परमिशन दे रहा था कि जाओ और इन सब मसीहों को जाकर के खत्म कर दो. प्रेरितों के काम 1:8 में शॉल ने उसे मार डालने का समर्थन दिया. So we know the scripture tells us clearly that Saul was persecuting Christians every day. He was taking orders from the authorities and he wanted to kill all the Christians. He wanted to persecute. In verse Acts 8:3 says, but Saul began to destroy the church, going from house to house. He dragged off both men and women and put them to prison. Saul घर घर जाकर के मसीहों को घर से निकाल करके उन्हें जेल में डाल रहा था. And he was giving murderous threats. It says in Acts 9, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. और जो प्रभु के चेले थे उनको धमकी दे रहा था मार डालने की. वो शाऊल था, ऐसा व्यक्ति जिससे लोग कांप रहे थे, डर रहे थे, थरथरा रहे थे. और मुझे ऐसा लगता है कि शाऊल ने वो डायलॉग बोला हो कि दूर दूर जब गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि चुप हो जा नहीं तो शाऊल आ जाएगा. शायद उस टाइम इस तरह की बातें चल रही हैं.
And 1 Timothy Paul himself says in 1 Timothy 1:13, that is now Paul's letter to Timothy. Timotheus को लिख रहा है, he says that हालांकि पहले मैं परमेश्वर की निंदा करने वाला, सताने वाला एक हिंसक व्यक्ति था, फिर भी प्रभु ने मुझ पर दया की. और 1 तिमोथी 1:15 में लिखता है कि मसीह यीशु पापियों को बचाने के संसार में आया, जिसमें से मैं सबसे बड़ा पापी हूं. शॉल खुद गवाही दे रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने मसीहों को मारा है, मैंने मसीहों को जेल में डाला है. बट Saul, who became Paul, he understood the grace of God, because in that condition when he was going to kill the Christians on the road to Damascus, जब वो दमस्कस के रोड पे जा रहा था मसीह को मारने के लिए, वहां सॉल की मुलाकात यीशु मसीह से होती है. सॉल अपने घोड़े पर जा रहा था, वो घोड़े से गिर जाता है और वहां पे आवाज आती है, उसको यीशु मसीह के दर्शन होते हैं और यीशु मसीह कहता है, सॉल सॉल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी. कहता है कि तुम मुझे क्यों सता रहे हो. सॉल हालांकि कलीसिया को सता रहा था, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि व्हाई डू यू परसिक्यूट मी. What we also understand is when you persecute the church, you actually persecute Jesus Christ. Because church is the bride of Christ. जब हम उसकी दुल्हन के खिलाफ जाते हैं, जब हम उसकी दुल्हन को सताते हैं, जब हम उसके दुल्हन के खिलाफ कार्य करते हैं, तो हम यीशु मसीह के खिलाफ कार्य करते हैं, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है. एंड वी नो दैट इमीडिएटली सॉल वाज स्टक विद ब्लाइंडनेस, और सॉल अंधा हो जाता है. लेकिन उस स्थिति में हम ये भी देखते हैं कि सॉल को पता है कि प्रभु कहता है कि हाँ मैं प्रभु हूं और मैं यीशु मसीह जिसे तुम सता रहे हो. और अंधेपन में सॉल प्रार्थना करता है, और हम कहानी में देखते हैं कि प्रभु अननायास से बात करता है, और अननायास वहां आता है, वो सॉल के लिए प्रार्थना करता है, और उसको वापस उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है. वो सॉल पवित्र आत्मा से भर जाता है, और उसके बाद वो पानी का बपतिस्मा भी लेता है. That was the whole conversion story of Paul. पॉल ने अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह को देखा. The touch of God changed the course of Paul's life. एक प्रभु का जो स्पर्श दमास्कस की रोड पे, the one act, अनुग्रह पॉल को दिखाया, और उसके द्वारा पॉल वहां पर बच जाता है, and he becomes the greatest apostles. हालांकि वो खुद कहता है कि मैंने तो लोगों को मारा है, मैं ग्रेट कहलाने लायक ही नहीं हूँ. ये उसका that is the humility of Paul, but he becomes the greatest apostle. He has written the maximum letters, maximum book in the New Testament. You know, one can say that, but it is not fair. हम ये सोच सकते हैं, हाँ, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि पॉल इतना evil था, इतना खराब था, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए था. But I am sure that no one wants fairness from God. हम कह सकते हैं कि हाँ, क्या ये उचित था प्रभु को ऐसा करना, लेकिन अगर हम फेयरनेस की बात करें तो शायद हम और आप प्रभु के फेयरनेस को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब ने पाप किया है. हाँ, हमने शायद सॉल की तरह, मैं सॉल की जैसा नहीं हूं, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, लेकिन हमने और पाप किए हैं. सबने पाप किया है. So let's not talk about fairness. This morning we have to understand the grace of God. हमें प्रभु के अनुग्रह को समझना है, जिसके हम लायक नहीं थे, प्रभु ने हमें वो जीवन दिया है. You know, we all want fairness. Looks like we all want fairness for others, but we all want grace for ourselves. जब अनुग्रह की बात आती है तो सबको अनुग्रह चाहिए, because that is what we need. So through Paul's conversion, we understand his grace is available for everyone. So if you're thinking this morning that my situation is very difficult, you don't understand what I have done, I don't know how God will accept me. If God can accept Saul and God can make Saul Paul, I think God can do work in anyone's life. प्रभु किसी के जीवन में भी कार्य कर सकता है. And secondly, the grace, what we have to understand about grace is the grace is sufficient
for every situation, and that is what we understand from Paul's situation. सिर्फ हमें अनुग्रह हमारे जीवन में सिर्फ मसीह में आने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन हर एक स्थिति में हमें हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है. और पॉल ये समझता था और वो भी ये बोलता भी है, His grace is sufficient for me. कि आपकी स्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसका जो अनुग्रह है वो आपके लिए काफी है. उसका अनुग्रह सिर्फ आपको बचाने के लिए काफी नहीं था, उसका अनुग्रह आपको जीवन में इस पार से उस पार पहुंचाने के लिए काफी है. You know, there's an interesting verse when Paul was converted. अगर आप पॉलुस की कहानी पढ़ें प्रेरितों के काम 9 में 15 और 16 ये कहता है, but the Lord told Ananias, वो Ananias को बोलता है, प्रभु, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings, to the people of Israel. प्रभु कहता है कि मैंने उसको चुना है. I will show him how much he must suffer for my name. प्रभु कहता है कि मैं उसको दिखाऊंगा उसको कितना सफर करना है मेरे नाम में. There was suffering for Paul, but also his grace was sufficient. And Paul really suffered for Jesus Christ. Paul ने प्रभु के लिए बहुत कुछ सहा उसके जीवन में. It's like अगर Paul अपना बायोडेटा लिखे कि मैंने प्रभु के लिए क्या क्या सहा है, तो उसमें बहुत कुछ यही लिख सकता है कि उसको क्या क्या तकलीफें हुई. 2 Corinthians 11 में मैं जल्दी से पढ़ूंगा इंग्लिश में. It says that 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in city, in danger in the country, in danger at sea, in danger from the false believers. I have labored, toiled, and often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. And that's the reason he was writing letters to different churches. And he's saying so much pressure I had in my life. But one thing he says, लेकिन एक बात पौलुस कहता है कि इस सब के बावजूद पौलुस ही कहता है कि if I must boast, अगर मुझे किसी बात पे घमंड करना है या मुझे किसी बात की बढ़ाई करनी है, I will boast of the things that show my weakness. जो मेरी कमजोरी को दिखाते हैं, ये सब बातें शायद ये दिखाती होंगी दुनियावी रीति से कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ मैं सह रहा हूं और मुझे इतनी सारी तकलीफ है, मैं कमजोर हूं. लेकिन मैं इसी बात पे घमंड करता हूं, मैं इसी बात पे मैं अपनी बात रख सकता हूं और इसी बात पे मैं बोस्ट करता हूं, क्योंकि मेरी जो वीकनेस है इस बात पर मेरा घमंड है. You know, we never want to show in our life weakness. कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने कमजोरी को दिखाएं. Anyone here who likes to show their weakness? We all want to portray a strong posture. हम सब चाहते हैं कि हम एक ऐसा अपने आप को ऐसा दिखाएं कि हम कमजोर नहीं है, हम ठीक ठाक हैं, ताकतवर है, हम संभाल लेंगे. और खास तौर पे जो पुरुष लोग होते हैं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द कभी रो नहीं सकता है. So we want to portray a strong front, and this is the world in which we live, and this is the thinking, the ideology which we have been brought up. But Paul is talking opposite of that. पौलुस इसका उल्टा ही बोल रहा है. पौलुस कह रहा है कि मैं अपना जो कमजोरियां हैं मैं उस पर घमंड करता हूं. वो इसलिए क्योंकि जब मैं उस पर घमंड करता हूं वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह सामने आता है. आमीन आमीन. कि जब हम अपनी कमजोरियों को पे घमंड करते हैं, जब अपनी कमजोरियों को सामने रखते हैं, वहां परमेश्वर कार्य करता है. अगर हम कहेंगे मैं तो बहुत ठीक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो परमेश्वर तो ठीक है, तो फिर तुम कर लो. लेकिन अगर परमेश्वर मैं बहुत कमजोर हूं, मैं ये अपने आप से नहीं कर सकता, परमेश्वर कहता है कि ठीक है, अब मैं
तेरी ओर से कार्य करूंगा। और जब परमेश्वर कार्य करता है तो उसका कार्य एकदम सॉलिड रहता है। आमीन। और पौलुस तो एक कदम और जाता है आगे। अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ते रहे तो बहुत ही अचंभा होता है पौलुस के जीवन को पढ़ने में। And Paul says, therefore, in order to keep me becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. और पौलुस कहता है कि ताकि मुझे मेरी कमजोरियों पे भी कहीं मैं घमंडी ना हो जाऊं, तो मुझे एक तरह से मेरे को एक कांटा दे दिया गया है मेरे शरीर के अंदर, a messenger of Satan to torment me, और मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। और फिर पौलुस कहता है कि 3 बार मैंने प्रभु से कहा कि इसको मेरे से दूर कर दे, लेकिन प्रभु ने कहा कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माय पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। आमीन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। Paul is saying that I was given this thorn in the flesh. We don't know what exactly, whether it was a physical ailment, whether it was a demonic oppression for Paul. We don't know. हमें नहीं पता exactly. और अच्छा है हमें नहीं पता. Otherwise, we would have made our own doctrine out of that. कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ये thorn in the flesh है. कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तकलीफ थी जो कि जिसके लिए पौलुस ने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इसको हटा ले, प्रभु ये मेरे जीवन से मुझे बहुत तकलीफ है। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, ये रहने दे, क्योंकि मेरा अनुग्रह इस स्थिति में तेरे लिए काफी है। आमीन। बहुत मुश्किल है ऐसा बोलना और इस बात को समझना। और मुझे पता है कि आप में से कई लोग शायद अपने जीवन में तकलीफ से गुजर रहे हैं। आप लोग इसी तरह की प्रार्थना करें। आपने 3 बार नहीं, आपने शायद 50 बार प्रार्थना की। आप शायद दिन भर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस तकलीफ से निकाल। शायद आपके जीवन में कोई शारीरिक तकलीफ हो, चाहे आपके कोई जीवन में संबंध को लेकर कोई तकलीफ हो, लेकिन प्रभु हमें पौलुस के जीवन से याद दिला रहा है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमें पता नहीं वो प्रार्थना हमारी कब आंसर होगी, लेकिन तब तक प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। आमीन। आमीन। हमें पता नहीं कि पौलुस की तकलीफ खत्म हुई कि नहीं। शायद जिंदगी भर पौलुस के साथ ये तकलीफ रही होगी, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह काफी है। We all want healing. I'm not saying that we shouldn't be praying for healing. Don't get me wrong. I am for healing. But let healing belongs to God. कभी कभी हम इतना प्रेशर ले लेते हैं कि हमें हील करना है। नहीं, हमें हील नहीं करना, हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हील करेगा। आमीन। और प्रभु क्यों हील नहीं कर रहा, कब हील करेगा, ये प्रभु ही जानता है, बिकॉज गॉड इज सॉवरेन। आमीन। सो डोंट कम अंडर टू मच ऑफ प्रेशर दैट वी वांट टू प्रोड्यूस हीलिंग। नो, वी हैव टू प्रे फर्वेंटली। हमें प्रार्थना करनी है, हमें लगातार, हमें प्रार्थना में कमी नहीं करनी है, लेकिन हीलिंग के लिए हमें प्रभु की ओर देखना है। Till then, His grace is sufficient. तब तक प्रभु का अनुग्रह काफी है। हो सकता है शायद कुछ लोगों को मेरी बात यहाँ पसंद ना आए, शायद सोच रहे अरे पास्टर शायद हीलिंग में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं। माय grandfather, my mom's dad, he was a fine Christian, and God used him for healing for many people. And there were stories when he used to come to my home. तो मेरे घर पे आते थे तो मेरे पिता उनको कई बीमार लोगों के पास लेके जाते थे, and he used to pray for them and people used to get healed. So I've heard there is an aspect of healing in our family, and I believe that God uses us to pray for people and people get healed. Amen. So continue doing that, but let's not have a lopsided theology that we will receive healing every time in that now here in this world. Maybe in this world we might not receive healing because we anyways are living in a fallen world. शायद किसी को इस जीवन में हीलिंग ना मिल पाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु नहीं है। प्रभु फिर भी प्रभु है। आमीन। फिर भी हम उसकी आराधना करेंगे, फिर भी हम उसको धन्यवाद देंगे। We can put it in this way: God uses
brings healing to show his glory. प्रभु चंगाई उसकी महिमा दिखाने के लिए लेके आता है. But sometimes God doesn't bring healing to show his grace. अगर चंगाई नहीं है तो प्रभु अपना अपना अनुग्रह हमारे जीवन में दिखाता है. पौलुस के जीवन में तो हमने देखा ही. टिमोथी भी अगर हम पवित्र शास्त्र को देखें तो टिमोथी भी बीमार रहता था और पौलुस उसको बोलता है कि टेक अ लिटिल वाइन सो दैट योर स्टमक प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर. 2 तिमोथी 4:20 में पौलुस एक त्रोफिमस एक आदमी था, उसको बीमार छोड़ करके पौलुस निकल जाता है. तो एक बीमार व्यक्ति को पौलुस आगे निकल जाता है. There was a famous story. There are many fine Christians, many people, the men and women of God, some didn't receive healing in their time. You know, Charles Spurgeon, the famous preacher, he suffered from gout, depression, and chronic pain throughout his ministry. But he was called the Prince of Preachers. Fanny Crosby, she became blind when she was a baby, and she lived for 94 years as a blind person. I think 5-6 महीने की थी जब वो blind हो गई किसी बीमारी की वजह से. And she wrote more than 1,000 Christian hymns. And she had a deep relationship with the Lord, but she was blind. And this is what she wrote in one of the places. She says, I'm going to read it in English. मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ. It says, it seems intended by the blessed providence of God that I should be blind all my life and thank him for the dispensation. कहते हैं कि शायद ये प्रभु की ओर से ये कि मैं पूरी जिंदगी अंधी रहूं तो मेरे लिए I thank him for that. If perfect earthly sight was offered me tomorrow, अगर मुझे आंखों की रोशनी दी गई कल, I would not accept it. I might not have sung hymns to the praise of the God if I had been distracted by the beautiful and interesting things around me. वो कहते हैं कि अगर मेरे इतने सारे हिम्स शायद मैं नहीं लिख पाती या गा पाती अगर मैं देखती और दुनिया की चकाचौंध में अगर मैं फंसी रहती तो. She also said that when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. वो कहती है कि जब पहला चेहरा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मैं अपने यीशु मसीह को देखूंगी. एमी कार्माइकल जो कि एक मिशनरी थी साउथ ऑफ इंडिया में, after many years of her ministry she was bedridden with an injury on but continued writing in ministry from her room from her bed. I think more than 15 years she was on the bed. So there are many people who didn't receive complete and perfect healing in this world. But as I said, we cannot reject God because we were not healed. Maybe I'm not preaching a very popular message this morning, but I'm preaching a correct message for you. You know, as I said earlier, we need to pray for healing. हमें प्रार्थना करनी है. ये हमारा एक तरह से ये हमारे लिए जरूरी है. This is our responsibility. But we also need to understand that healing belongs to the Lord. Amen. Let's not take that burden on ourselves that because of my weak faith, I'm not getting healing. I think we are burdening someone who's already burdened by sickness. कभी-कभी उन लोगों के ऐसे कुछ लोग होते जाते हैं, शायद तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, तो विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहे. अरे वो बेचारा वैसे ही परेशान है, तुम उसके ऊपर विश्वास का एक बोझ और डाल रहे हो. अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम प्रार्थना करो. So let's not come with those kind of talks. I think let's believe in praying for healing, but also believe that God is going to do his work despite of that situation where that person is going through. And Christ, this is what Paul says in when 2 Corinthians, which I read. He says, that is why for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. वो कहता है कि मैं इसलिए इन सब परेशानियों, insult, hardship और persecution में खुश होता हूँ और delight करता हूँ, because when I am weak, then I am strong. Looks like a paradox. मतलब बहुत अजीब सी बात है ना कि मैं कमजोर हूँ तब मैं जाकर के ज्यादा समृद्ध हूँ और ज्यादा शक्तिशाली हूँ.
क्योंकि तब मेरे पास प्रभु की शक्ति है. If you are weak today, you are strong in the Lord. Because God's strength surpasses all the strength of this world. So as I said, the grace of our Lord Jesus Christ, the next one, is available for everyone, is sufficient for every situation. Amen. Say to the next, say to the person next to you, the grace of Lord Jesus Christ is available for you and is sufficient for you. You know, I started by quoting the last verse of the Bible. मैंने जो आखिरी वचन था परमेश्वर का वो पढ़ा. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. The second last verse says that talks about Jesus coming soon. वो कहता है कि परमेश्वर, yes, he who testifies these things says, I am coming soon. वो ये बोल रहा है कि हाँ प्रभु यीशु आ रहा है. And then it says, Amen. Come Lord Jesus. प्रभु यीशु तू जल्दी आ. और जब तक तू आ रहा है प्रभु, जब तू जल्दी आ रहा है प्रभु, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस बी विथ योर पीपल. जब तक तू प्रभु आ रहा है, जैसे तू प्रभु जल्दी आ रहा है, तब तक तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे, क्योंकि हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है. Let's just close our eyes and pray.